Okay. Hello and good morning. And as usual, welcome back. आज तो 12th के भी एक दो बच्चे आ गए थे, कोई मैसेज आ रहा है कि हमने सोचा शायद आज फिजिक्स पहले, ये जनरली वेडनेसडेज जो है फिजिक्स पहले होता है 12th वालों का, तो उनको भी यही लगा. Good morning all of you again and welcome messages from Rishabh Jain, Shreyashi, Ansh Agarwal as a query. Good morning. Parth, Devrat. Ansh Agarwal has the most important query and that is date sheet. तो अभी तक नहीं आया. Actually, date sheet का dilemma हो गया इसलिए नहीं आया. And that is whether to hold the exam online या offline. अगर online होता है तब तो चलो routine है, जैसे already हो ही रहा है. Things are already happening. पर एक opinion या mood ये बन रहा है कि उसको offline क्यों ना कर लिया. Means calling the students. इसी बहाने थोड़ा सा initiation या introduction भी हो जाएगा. So that is one idea which is floating around. अभी कुछ final तो हुआ नहीं है. So therefore things are in waiting mode. That's what I know. I mean, तो अब ये तो obvious हो गया कि इस हफ्ते तो हो नहीं रहा है. I mean, today is already Wednesday. There cannot be an announcement कि कल से पेपर है या even परसों से है. So it will be definitely the next week. Next week में भी अगर मान लो offline होता है, मतलब स्कूल बुला के होता है, let's say अगर होता है तो I don't know. I am not claiming anything. अगर स्कूल बुला के होता है तो इन दैट केस तो शायद मंडे भी नहीं हो पाएगा. ठीक है. और अगर ऑनलाइन का डिसीजन होता है जैसे ऑलरेडी हो रहा है तो इन दैट केस मे बी यू विल गेट द डेट शीट बाय टुडे और टुमारो, व्हाटएवर इट इज. सो एंड मे बी इट विल आल्सो स्टार्ट ऑन मंडे और ट्यूसडे, व्हाटएवर. बट एज ऑफ नाउ थोड़ा सा अभी डायलेमा चल रहा है कि वेदर टू होल्ड इट ऑनलाइन और ऑफलाइन, और इसी वजह से थोड़ा सा वेटिंग मूड में. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्या बनता है फाइनली. ठीक है. घर से इसकी पेपर है भी, देखो पेपर तो होना है. ये तो पक्का है. बाकी वही बात है कि ओके क्रिश की पूरे रात नींद नहीं और लाइट नहीं आई. अरे ऐसे भी एरिया हो जाता है कई बार. मेजर फॉल्ट, लाइट ही नहीं है. चलो हर्षित, गुड मॉर्निंग. आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट. yesterday we were discussing on ladder case कि ladder अगर रखते हैं तो in that case friction का requirement क्या होगा and so on. पर देखो लैडर को कोई ऐसे दीवार पे ऐसे लगा के कोई रखता तो है नहीं. ऑब्वियसली इट इज यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग. क्लाइंब करते हुए उसका एक अपना डायनेमिक्स है. ठीक है ना. आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखोगे कि जब हम क्लाइंब करते हैं तो इन दैट केस जब हम बॉटम वाले स्टेप्स में हैं, नीचे वाले शुरू वाले में, उस समय फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट, दिस इज समथिंग दैट यू विल डिस्कवर. वो अलग बात है कि मैं थोड़ा सा हिंट पहले से दे रहा हूं, बट आई थिंक you will discover yourself and we already have the wherewithals or the means and the tools to handle it. तो देखना जैसे जैसे हम क्लाइंब करते हैं ऊपर तो देखना फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट कुछ बढ़ सा जाता है, ऐसे लगता है. तो whether it is justified or not, I think that would be best tested when we solve a question, है ना. चलो, so like let me do it like this, that suppose I say that this is a floor and a wall. As usual, a ladder, length L, okay, and ladder is of mass M, and a person stands right at the bottom. Question is, what is the minimum requirement of friction? ठीक है. और ये थीटा है. To simplify matters, let's again take mu as friction coefficient in both the surfaces, that is the wall surface as well as the ground surface. Question वही है, what is the minimum friction requirement? तो by the way यहाँ पे एक person है, उसका भी मास है ना, तो mass of person and ladder. Now I can take 2m, 3m also. There is no issue in that because our purpose is a little different. Our purpose is that I want to understand whether the need of friction is more when the person is here or when the person is here or when the person is at the middle. I just want to investigate and study. So that is the purpose. तो वहाँ पे m, 3m, 2m इतना matter नहीं करेगा. ठीक है ना. So therefore I'm taking the mass to be the same so that things might be a little bit simpler और calculation थोड़ा कम होगा और कोई बात. ठीक है ना. चलो, so let's start. This new friction, there's a ladder. This person is a mass M.
लैडर का लेंथ एल ले लो अपने आप, और ये थीटा एंगल है। तो क्वेश्चन इज फाइंड म्यू मिनिमम टू अवॉइड स्लिपिंग। और इस बार मैं थीटा का कुछ एक वैल्यू भी दे देता हूँ, ठीक है ना, जस्ट टू मेक द मैटर्स मोर। तो थीटा ले लो एज सपोज 53 डिग्री, theta is 53 degree. You have to find out what is the minimum mu required. Okay, you have to find out the minimum mu required. Go ahead. Now, because this is a slightly longish kind of a question, so I'm not waiting for your solution or answer. You go ahead parallelly. Let me also begin. थीटा का वैल्यू हम लोग लास्ट में पुट करेंगे, शुरू में मत पुट करना, एकदम से चीजें क्लियर होने लगता तो हम नहीं चाहते, हम चाहते कि थीटा लास्ट में पुट करेंगे। और 3 केसेस हमें स्टडी करना है, when the person is here, when the person is at the midpoint, and when the person is the top. तो इससे एक ट्रेंड पता चलेगा, इससे एक ट्रेंड पता चलेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। सो गो अहेड नाउ। So first question is that if it is here, ठीक है, as usual I will draw the free body diagram which will include these forces. क्योंकि म्यू मिनिमम पूछा है तो हम लोग ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग ले सकते हैं, है ना। तो ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग अगर होता है तो ये यहाँ पे जो नॉमिनेशन है वो मैं लूंगा ny, और ये जो होगा वो होगा nx, ये हो जाएगा म्यू ny, और यहाँ पे हो जाएगा, ये जब स्लिप करेगा तो इधर आएगा तो फ्रिक्शन इधर, और वो नीचे आएगा तो फ्रिक्शन ऊपर, यानी म्यू nx. I hope the diagram is at the end. Bhavya has asked, is the person at rest? See, there are 3 situations. Person is rest at this point, person is rest at this point, and person is at rest at this point. तो तीनों इन्वेस्टिगेट करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहला वाला केस को लेके, जब पर्सन यहाँ पे है, तो देखते हैं फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट कितना है। तो मेरा इन्वेस्टिगेशन का पर्पस ये है कि मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ लैडर को क्लाइम करके, तो क्या फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट बढ़ता है या घटता है, या इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द पर्सन। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है ना। चलो, तो और भी फोर्सेस हैं, वो है mg यहाँ पे, और एक mg यहाँ पे, ठीक है। as usual mu is the friction coefficient. So let me start writing the equations of x and y. तो x का इक्वेशन हो जाएगा mu ny has to be equal to nx. तो nx is equal to mu ny, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल दो ही है। y का इक्वेशन हो गया ny प्लस mu nx इक्वल टू 2mg, mg और mg तो 2mg, ठीक है। भाई अब क्योंकि nx है mu ny, तो आई कैन राइट इट हियर, तो यानी ny प्लस म्यू स्क्वायर ny इज इक्वल टू 2mg, तो इससे ny आ गया, ny इज इक्वल टू 2mg बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ओके, अब आ जाओ टॉर्क का इक्वेशन। तो लेट्स चूज दिस ओनली एज द टॉर्क इक्वेशन पैरामीटर। तो इससे बेनिफिट ये हो जाएगा कि कुछ टॉर्क जीरो हो जाएंगे, तो लेट्स सी व्हिच आर द वंस व्हिच इज बिकमिंग जीरो। ny mg और म्यू ny सबका टॉर्क जीरो खत्म हो गया। तो क्लॉकवाइज टॉर्क इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय ओनली mg, यानी mg इनटू l by 2 cos थीटा, ये फोर्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, mg into l by 2 cos थीटा। और ये दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज हो गया, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज।
that will be equal to nx. nx is equal to, अच्छा ny अगर ये होता है तो nx क्या होगा, म्यू ny, यानी 2 म्यू mg, 2 म्यू mg, ये काम करो एक एक स्टेप, चलो ठीक है लिखिए, by 1 plus म्यू स्क्वायर into nx, ठीक, यानी l sin थीटा प्लस म्यू nx, तो nx तो ये है ना, तो म्यू वाले में क्या मतलब क्या, 2 म्यू स्क्वायर, यानी 2 म्यू स्क्वायर mg by 1 plus म्यू स्क्वायर, ये हो गया म्यू nx into l sin theta. After I cancel out mgl, I will get, and I multiply it by 2, and I multiply it by 1 plus म्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 plus म्यू स्क्वायर cos theta is equal to 4 म्यू, और सीधा नहीं होगा। हाँ ये ठीक, तो 4 म्यू sin theta plus 4 म्यू स्क्वायर cos theta, 4 म्यू स्क्वायर cos theta, ठीक है, आई थिंक दैट्स इट। तो यानी म्यू स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूं तो 4 cos theta minus cos theta, that is 3 cos theta plus 4 म्यू sin theta minus cos theta is equal to g। इससे क्या होगा ना, म्यू इज इक्वल टू माइनस बी, यानी माइनस 4 sin theta प्लस माइनस, तो माइनस तो होगा नहीं, प्लस वाला ही लेंगे, बी स्क्वायर दैट इज 4 sin theta होल स्क्वायर प्लस माइनस इसके प्लस हो गया 4 ac, तो 4 is a 12 cos square theta by 2a, that is 2 into 3 cos theta, यानी 6 cos theta, ठीक है, that's the case। अब मैं इनके वैल्यूज पुट कर लेता हूं तो आ जाएगा -2/3 tan थीटा, ठीक है, ये आ गया म्यू का वैल्यू, तो मे बी जस्ट somebody can just put the values and get the answer। तो sin थीटा, ठीक है, यानी -2/3 tan थीटा, यहाँ पे एकदम जगह नहीं, इसलिए फायदा नहीं है। Therefore mu minimum, therefore mu minimum is equal to -2/3 tan theta plus 1/6 cos theta, और ये अंडर रूट में क्या आएगा ना, 12 cos square theta तो है ही है, और 16 sin square theta मतलब 12 sin square theta, 12 plus 4 sin square theta by 6 cos theta, तो 12 plus 4 sin square theta by 6 cos theta, ठीक है, this is what we are getting, यानी equal to minus of 2/3 into tan theta, तो थीटा 53 डिग्री है, तो tan थीटा मतलब हो गया 4/3 प्लस sin square theta, now sin theta is how much, 4/5, तो 16/25, ठीक है ना, तो 64/25, 12 से 364/25, यानी रूट अंडर 364/5 into 6 into cos theta, cos theta is 3/5, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये आ रहा है, यानी इक्वल टू
रूट अंडर 364 by 18 minus 8 by 9. This is what we get. इसमें भी थोड़ा बहुत कैंसिलेशन हो सकता है. You can see that very clearly. करना है तो कर ही लो. चलो तो 9 नीचे कर लो. -8 ये 9 हो जाएगा और 364 को 4 से डिवाइड करोगे तो 91 अंडर रूट ऑफ 91 या अंडर रूट ऑफ 91 माइनस 8 बाई ऐसे कुछ आ NY वाला एंटी क्लॉकवाइज कैसे हुआ इज द क्वेश्चन. नहीं NY तो लिया ही नहीं मैंने. NY MG और म्यू NY ये तो एक भी नहीं लिया. ये mg का टॉर्क है ये वाला mgl/2 cos थीटा ये वाला. ये हो गया क्लॉकवाइज और इसको सेंटर मानोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है और म्यू nx वो भी एंटी क्लॉकवाइज था. एंटी क्लॉकवाइज का समेशन इज इक्वल टू क्लॉकवाइज. तो इससे आ गया. तो आंसर आ गया रूट अंडर 91 माइनस 8 बाय n9. अब ये कुछ वैल्यू आएगा ठीक है ना. तो फटाफट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो 9.53 या 9.5 समझ लो है ना. तो 9.5 approximately. तो 9.5 minus 8 is 1.5. So that's approximately 1.5 by 9. That's the coefficient of friction required if it is supposed to be at rest when the person is at the bottom. ठीक है. चलो अब एक काम करते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन काफी ज्यादा है. तो एक काम करते हैं बीच वाला स्किप कर देते हैं सीधे यहाँ पे चलते हैं. And let's redraft these equations on. इसको याद रखेंगे ये अराउंड 1.5 by 9 है. ये अप्रोक्सीमेट है तो इसलिए आप कैंसिलेशन करना चाहो कर सकते हो. दैट्स अप टू यू. चीजें कैंसिल हो जाएगा तो लाइक 0.5 हाफ तो अप्रोक्सीमेटली 1/6 आ. ठीक है. अगर ज्यादा क्लोज वैल्यूज आएंगे तो इन दैट केस फिर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल देखेंगे. अदरवाइज अप्रोक्सीमेटली 1/6 का वैल्यू आ अप्रोक्सीमेट. Now what change will happen? Let's say if this person shifts from here to here. Let's see. If the person shifts from here to here, is there any change in the NX equation? The answer is no. Is there any change in the NY equation? The answer is still no. क्यों? सर एक बार टॉर्क वाली वापस बता दो. नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था. अच्छा टॉर्क वाला. तो टॉर्क देखो एक तो mg वाला. तो अगर मैं इसको सेंटर लेता हूं देखो इक्विलिब्रियम में हर जगह अलाउड नहीं है. ध्यान रखना क्योंकि ध्यान रखना जितने भी हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है ना सारे सेंटर ऑफ मास के लिए वैलिड है. ध्यान रखना ये सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम के केस में तुम जहां पे मर्जी जो है टॉर्क इक्वेशन लिख सकते. ओनली इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम. अब जैसे ये टॉपिक खत्म होगा ना इक्विलिब्रियम तो हम लोग नॉन इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे. तो इन दैट केस ऑल थिंग्स आर ओवर. ओनली सेंटर ऑफ मास. बहुत रेयर केस में और भी अलाउड है तो वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग नॉन इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे. तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है फायदा that you can choose your center means you can choose any point as the center about which you can analyze torque. तो मैं obviously convenient point ढूंढूंगा है नहीं. I think a convenient point is this. Why? ना उसमें देखो ये दो और एक ये तीन फोर्सेस के टॉर्क जीरो हो जाता है. तो कुछ तो फायदा हुआ कि मान लो अगर तुम बोलोगे नहीं मैं तो इस पॉइंट का वोट निकालना चाहता हूँ. I have no issues. But then mind you फिर क्या होगा इसका भी टॉर्क आएगा इसका भी टॉर्क आएगा इसका भी टॉर्क आएगा इसका भी आएगा इसका भी आएगा. यानी टोटल 6 एक्सप्रेशंस ऑफ टॉर्क आएंगे और नेट को इक्वल टू 0 करो. अल्टीमेटली इक्वेशन वही बनेगा लेकिन मेहनत ज्यादा होगा. इसलिए मैं वेंटेज पॉइंट ढूंढ रहा हूं. तो मैंने वेंटेज पॉइंट ये ढूंढा. बट आई विल रिपीट वंस मोर. कोई भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क का इक्वेशन वैलिड नहीं होता क्योंकि हमारा जो लॉज ऑफ मोशन है वो सिर्फ सेंटर ऑफ मास के लिए वैलिड होता है. इट्स ओनली इन इक्विलिब्रियम व्हिच इज अ स्पेशल केस where you can take torque about any point or any axis. ठीक है सिर्फ इक्विलिब्रियम के केस. तो हम तो इक्विलिब्रियम में एनालाइज कर रहे हैं तो therefore any point चलेगा. तो इसलिए मैंने ये लिया और ये क्यों लिया मैंने एक्सप्लेन कर. अब आ जाओ टॉर्क के इक्वेशन. तो mg का टॉर्क का इक्वेशन क्या होगा L/2 cos थीटा. ये डिस्टेंस ये हो गया क्लॉकवाइज. देखो सेंटर अगर ये है तो फोर्स ऐसे तो क्लॉकवाइज. ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज. तो nx और ये डिस्टेंस ये क्या होगा ये L है ये थीटा है. तो ये क्या होगा L sin थीटा. तो वही चीज यहाँ पे L sin थीटा आ गया. ये देखो L sin थीटा यानी nx into L sin थीटा. अब nx कहां से है ना म्यू ny.
और ny कितना है 2mg बाई दिस, तो एक म्यू मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 म्यू mg आ गया इसलिए। तीसरा हो गया म्यू nx, तो nx तो ये है, तो म्यू मल्टीप्लाई कर दो, क्या म्यू की जगह म्यू स्क्वायर, तो ये देखो म्यू स्क्वायर, तो ये हो गया nx म्यू nx इनटू ये वाला जो म्यू nx वाला जो होगा वो क्या होगा l cos थीटा, ये देखो l cos थीटा, तो l cos थीटा। अब उसके बाद सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। अब वो सॉल्व सर एक किया। बार वेटिंग रूम चेक कर लो। हाँ ओ अच्छा सॉरी, तो नीचे आ गया। तो ये अप्रोक्सीमेटली आ गया 1/6, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली 1/6 ये चीज फाइन। तो ये म्यू आ गया। अब हम शिफ्ट करके इस पर्सन को यहां ले जा रहे हैं, तो अगर यहाँ पे ले जाएंगे तो nx और ny की मतलब x और y के इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है। हाँ टॉर्क के इक्वेशन में एक एक्स्ट्रा टर्म अब आएगा, अब एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा, ठीक है। और वो कौन सा होगा ना, यहाँ पे एक और आएगा, दैट इज दैट mg टर्म। तो mg वाला क्या होगा ना, mg इंटू फिर वो भी l cos थीटा, यानी एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, दैट इज mg इंटू l cos थीटा, और वो आएगा क्लॉकवाइज में। तो ये mg इंटू l/2 cos थीटा था, अब हो गया mg इंटू l cos थीटा, और वो भी क्लॉकवाइज है, तो देखो इधर ऐड होगा। तो एक काम करता हूँ सर मैं, सर अगर हम दूसरे पॉइंट के और अबाउट जहाँ पे पर्सन खड़ा है उसके अबाउट टॉर्क निकालते हैं तो mg और न्यू एन वाई ये क्लॉकवाइज में आते हैं ना। एक सेकंड कौन से एक काम करता हूँ, मैं सर समझ गया तुम्हारी क्वेश्चन, हाँ मैं समझ गया तुम्हारा क्वेश्चन, जस्ट लेट मी फ्रेम द इक्वेशन, फिर मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तो ये mg ओके l/2 सर। cos थीटा हो गया, और ये mg वाले का क्या हो गया l cos थीटा, तो ये दोनों ऐड हो गया, तो यानी एक l/2 cos थीटा, एक l cos थीटा, तो यानी 3/2 l cos थीटा ऐड करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, लंबा नहीं कर खींचता हूँ, इसको मैं यहीं पे 3/2 कर देता हूँ, तो मैं ना mg इंटू l/2 cos थीटा और mg इंटू l cos थीटा, पर्सन यहाँ जा चुका है, तो ये जो mg मैंने यहाँ ड्रॉ किया है वो अब चेंज हो जाएगा, तो स्मॉल चेंज है ना, तो वो mg अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो बस थोड़ा सा चेंज है, तो 3/2 mg l cos थीटा हो गया। तो उसके चक्कर में क्या होगा, 1 प्लस म्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई किया है मैंने, 2 से भी मल्टीप्लाई किया, तो यानी ये हो जाएगा 3, है ना, क्योंकि मैंने 1 प्लस म्यू स्क्वायर, क्योंकि इधर वाले इक्वेशन में तो कोई चेंज है नहीं, ये तो सेम ही रहेगा, तो ये 3 हो गया, तो केयरफुली करना पड़ेगा, 3 म्यू स्क्वायर हो गया, ये भी चेंज हो जाएगा क्योंकि ये 4 म्यू स्क्वायर है और ये 3 म्यू स्क्वायर होगा, तो ये म्यू स्क्वायर cos थीटा होगा, दैट्स द फर्स्ट चेंज। फिर ये -3 cos थीटा होगा, और म्यू में तो आई थिंक कोई चेंज नहीं है क्योंकि 1 प्लस म्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई किया है, उधर भी 2 म्यू आ गया, दैट्स इट, 4 म्यू sin थीटा, है ना। आई थिंक द इक्वेशन इज ओवर नाउ। तो म्यू स्क्वायर cos थीटा प्लस 4 म्यू sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है, सेम ही है। अब ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, म्यू कितना हो जाएगा फिर -b, तो ये तो चेंज नहीं हो रहा है, प्लस माइनस तो माइनस तो होगा नहीं, अंडर ऑफ b स्क्वायर, तो ये हो गया -4ac, ये बाई चांस सेम रहेगा, ठीक है, हो गया। अच्छा ठीक है, एक जगह कम हो एक जगह ज्यादा हो, ठीक है, पहले ये 3 था, वो 3 वहां चला गया, यानी -4 sin थीटा प्लस 4 sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस, बस यही आ रहा है, और बाई 2a, यानी अब ये हो जाएगा 2 cos थीटा, यानी कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है ना, प्लस बी स्क्वायर -4ac, तो ये आ गया। यानी एक्चुअली देखा जाए तो न्यूमरेटर में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, सिर्फ डिनोमिनेटर में 6 cos थीटा की जगह 2 cos थीटा हो गया, है ना। आई थिंक दैट्स द ओनली चेंज, इजंट इट। तो यानी अगर देखा जाए तो बेसिकली क्या हो गया ना, 3 टाइम्स हो गया। फिर ये को जरा ऑब्जर्व करो जरा, जस्ट सी वेदर माय ऑब्जर्वेशन इज राइट और नो। हाँ, they have also pointed out the same thing, that is 3 के फैक्टर में चेंज हो गया, यानी म्यू का रिक्वायरमेंट क्या हो गया, 3 टाइम्स हो गया। तो सब कुछ सेम ही हो गया, बस 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो बस इंटू 3 कर दो, ये भी इंटू 3, है ना, ये भी इंटू 3, सब इंटू 3 हो गया।
यानी 3 से मल्टीप्लाई करो तो हाफ आ गया अप्रोक्सीमेटली होगा, क्योंकि रूट के अंदर ही आ रहा है, मतलब ऐसे नहीं कि रूट से बाहर आ गया, बट अप्रोक्सीमेटली क्या होगा ना, हाफ आ गया. सो यू आर सेइंग that whatever is the friction required at this point, if I climb up to this point, the friction requirement becomes 3 times exactly. ठीक है ना. और ऐसे फिर यहाँ पे भी होगा कुछ ना कुछ, मतलब जैसे जैसे मैं एक्सक्यूज मी, जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक क्लाइम कर रहा हूँ, तो फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है. दैट इज द एनालिसिस दैट वी आर गेटिंग. ठीक है. इन द मीनवाइल वो जो क्वेश्चन आया था उसका जरा फटाफट देख लिया जाए. क्वेश्चन आया था कि अगर मैं टॉर्क, हाँ, कौन से पॉइंट का वो टॉर्क निकालना चाह रहे थे? सर जिस पॉइंट पे पर्सन खड़ा है अगर उसके अबाउट निकालते तो आप बस एक आइडिया दे दे क्वेश्चन अगर इस, हाँ ठीक है, अगर इस पॉइंट का वो टॉर्क निकालोगे, इन दैट केस क्या होगा ना, इन तीनों का टॉर्क तो खत्म हो गया. देखो हम लोग वेंटेज पॉइंट का वो टॉर्क क्यों निकालना चाहते हैं कि उससे एक्सप्रेशन के जो लेंथ है वो थोड़ा कम होगा, या नंबर ऑफ टर्म्स है वो कम हो जाए. दैट्स द बेनिफिट. तो यहाँ पे भी अगर टॉर्क निकालते हो तो दिस इज आल्सो गुड पॉइंट. रैंडम पॉइंट पे टॉर्क निकालने का मतलब क्या होता है कि हर एक टर्म को हमें फिर इंक्लूड करना पड़ता है. अल्टीमेटली इक्वेशन वही बनता है, वो काटा पीटी करके वही बनेगा, बट क्यों टाइम वेस्ट करें. तो देखो इवन इफ यू टेक दिस एज द पॉइंट दिस टाइम, आई थिंक इट्स अ गुड वन. ऐसे कोई दिक्कत नहीं, दिस इज आल्सो गुड वन. तो इससे क्या होगा ना, एक म्यू एन वाई का टॉर्क आएगा, एक एन वाई का आएगा, एमजी का आएगा. अब रह गया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. तो अगर इस पॉइंट का वो टॉर्क निकालते हो इक्वेशन, तो ये सब समझ लो. तो पहले एक काम करो, इंस्टेड ऑफ मी गिविंग द आंसर, लेट मी आस्क. इस पॉइंट को अगर तुम एक्सिस मानते हो, यानी इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क लेके इक्वेशन लिखना चाहते हो, इन दैट केस mg का टॉर्क क्या होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? इन दैट केस mg का टॉर्क क्या होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बताओ. ओके, अरियंत ने आंसर दिया है कुछ, जब मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि कई बार ना बायस हो जाता है उससे. इस पॉइंट को अगर इक्वेशन टॉर्क के इक्वेशन के लिए यूज करते हो, तो mg का टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? दैट इज माय क्वेश्चन. Okay, Aryan clockwise, Ketav anti-clockwise, Parth clockwise, Devrat anti-clockwise, Deham clockwise. Aryan फिर से आंसर किया anti-clockwise, Krish anti-clockwise, Som anti-clockwise, Yashu anti-clockwise, Zania anti-clockwise, Garv anti-clockwise. अब anti-clockwise भारी पड़ता जा रहा है, and that's right. देखो ये जो एक्सिस है, अगर ये mg देखते हो तो क्या हो रहा है, mg ऐसे है, यानी क्या होगा, ऐसे हो गया ना. अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ, सर्कल अगर बनाता हूँ, तो दिस इज हाउ द फोर्स इज एक्टिंग. तो देखो कौन सा डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज हुआ या नहीं. जैसे mg का तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया सर्कल. अब हम दूसरे पे चलते हैं, ny का क्या होगा, ny का. अब ny का बताओ, ny का. चलो इस बार किसी ने गलत नहीं किया, पिछले बार तो कई लोगों ने गलत किया था. चलो गुड, इस बार देखो किसने गलत नहीं किया, तो इट्स गुड. आई मीन यू आर लर्निंग इट सीम्स. ठीक है, गुड. सबने सही बता दिया. ny का तो सबने सही बता दिया, ny का शुरू से सही बता दिया. देव, सोम, देहम, गर्व, भव्य, कृष, पार्थ, हर्षित, अरियंत, केतव, यशु, सबने बता दिया एकदम परफेक्ट क्लॉकवाइज. और लास्ट में म्यू एन वाई का भी बता ही दो. ये भी एक फॉर्मेलिटी है. म्यू एन वाई का क्या हो गया फिर, चलो ठीक है. इसमें भी आप कोई गलत, किसी ने गलत नहीं दिया. So everybody has given the right answer. केतव, गर्व, आयुष, है ना, अरियंत, यशु, भव्य, सबने एंटी क्लॉकवाइज, हर्षित, पार्थ, सबने, अब सोम, देवव्रत, सबने एंटी क्लॉकवाइज बोल दिया. किसी ने गलत किया था? नहीं, किसी ने भी गलत नहीं. अच्छा, देव ने अब एक जबरदस्ती मैसेज किया, बोलता है कि अब सब सही कर रहे हैं तो ये गलत भी होना चाहिए करके जानबूझ के क्लॉकवाइज लिख के बोला, देखो अब गलत हुआ. चलो ठीक है, डजंट मैटर. यानी देखो आप समझ में आ गया क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज, और उसके बाद टॉर्क के इक्वेशन लिखो, यू विल गेट एग्जैक्ट. देखना घुमा फिरा के देखना यही इक्वेशन आने. ठीक है ना. तो लाइक डजंट मैटर, इट्स जस्ट दैट यू सिलेक्ट अ वेंटेज पॉइंट एंड दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग. ठीक है ना. नाउ यू माइट से बट यू डिड नॉट सिलेक्ट दैट. you did not select that, you selected this one. वेंटेज तो नहीं था, इसके मतलब जब पॉइंट पर्सन वहां पे है. एक्चुअली पता क्या है ना कि बात सही है. आई थिंक इफ यू पॉइंट आउट लाइक दैट आई वुड एग्री. बट पता क्या है रीजन इज दैट मैं एक्चुअली ना सारा बिगाड़ना नहीं चाहता. क्योंकि देखो अगर तुम इसको लेते हो ना तो एक टर्म कम हो जाएगा, एग्रीड, लेकिन फिर सारे टर्म्स चेंज हो जाएंगे, इसलिए मैंने अवॉइड किया.
ठीक है ना, इसलिए मैंने अवॉइड किया। इसलिए मैंने क्या कि इसी पॉइंट को लिया, क्योंकि मुझे मालूम है तो क्या होगा ना, फिर बाकियों का एक्सप्रेशन सेम रह जाएंगे, एक्सप्रेशन सेम रहेगा, वैल्यू नहीं, और बस एक टर्म एक्स्ट्रा आएगा, तो वो मैंने यहीं पे एडजस्ट करा दिया। तो इसलिए आप देखा होगा कि इस वाले क्वेश्चन में जब पर्सन यहाँ पे था, तो कायदे से मुझे टॉर्क का इक्वेशन इस पॉइंट का वर्ड लेना चाहिए था, क्योंकि वो ज्यादा कन्वीनियंट पॉइंट, लेकिन मैंने इस पॉइंट का इसलिए लिया क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी इसी पॉइंट का लिया था, तो मुझे इक्वेशन बने बनाए मिल गया। बट अगर मान लो क्वेश्चन होता द पर्सन इज स्टैंडिंग हियर एंड नाउ टेल मी व्हाट इज द फ्रिक्शन रिक्वायरमेंट, तो मैं भी इस पॉइंट को एक्सेस लेता, फिर क्या होता है, एक टर्म कम होता। दैट्स द पॉइंट, बिकॉज़ अदरवाइज योर थॉट्स माइट बी कि आप एक सजेस्ट कर रहे हो उधर और खुद तो यहाँ पे लिया। वो इसलिए क्योंकि पिछले क्वेश्चन का मैं हेल्प लेना चाह रहा था, नहीं तो मुझे सारे टर्म दोबारा नया लिखना, दैट वुड हैव बीन अ यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम, है ना, इसलिए मैंने की। ठीक है, चलो, एनीवे आई होप यू गॉट द पॉइंट नाउ। So that was about the investigation of a ladder. So you realize now कि हाँ, जितना ऊपर जाते हैं तो उतना फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। अब देखो इसका एक प्रैक्टिकल यूज समझो, इसका एक प्रैक्टिकल यूज समझो। पता है क्या होता है, कई बार देखना, मैं बताता हूँ, जैसे मैं अपने कमरे में अगर देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक ऊपर वो है, क्या बोलते हैं, क्लॉक है, और एक जगह एक वेंटिलेटर टाइप का भी है। तो उसमें कई बार ना, जैसे वेंटिलेटर साफ करना होता है, अब वेंटिलेटर साफ करने के लिए ना वो रॉड से हो नहीं पाता कई बार, तो क्योंकि वो वेंटिलेटर थोड़ा अंदर की तरफ, तो ऐसे वाले रॉड तो इस तरफ नहीं जा सकता, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, स्टेयर केस को, मतलब लैडर लगा के, एक लैडर है हमारे घर में, तो उसको लगा के फिर हम चढ़ते हैं, या कभी सेल बदलना होता तो हम लैडर लगा के चढ़ के करते हैं, कभी तो टेबल के ऊपर चेयर रख के करते, बट देन उसमें टेबल को शिफ्ट करना पड़ता है, लैडर को शिफ्ट करना ज्यादा आसान है। अब इसमें एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझो। अब पता क्या होता है कि डर लगता है, लैडर को चढ़ते हुए डर लगता है, क्यों, अरे कहीं गिर ना जाए, स्लिप ना कर जाए, है ना। अब देखो हम लोग अक्सर पता क्या करते हैं, लैडर के यहाँ पे चढ़ते हैं, है ना, डरे डरे थोड़ा सा ऐसे स्टेप रख के चढ़ते हैं पहले, फिर देखते हैं कि लैडर स्लिप कर रहा है नहीं कर रहा है, ऐसे करके देख लेते हैं, स्लिप नहीं करता है, हम सोचते हैं अब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम लोग क्या करते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं बड़े कॉन्फिडेंट। अब ये रिस्की हो सकता है, क्यों, क्योंकि जस्ट बिकॉज द लैडर इज स्टेशनरी हियर डज नॉट मीन दैट व्हेन यू क्लाइंब एट द टॉप और व्हाटएवर वर्क यू वांट टू डू, कि लैडर स्टेशनरी रहेंगे, लैडर स्लिप कर सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ यूं लैडर के ऊपर मत चढ़ जाओ, क्यों, हो सकता है तुम जब ऊपर चले जाओगे तो लैडर एकदम धड़ाम से गिर जाएगा और उससे बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन, है या नहीं। सो देयरफॉर जब हम लैडर को टेस्ट करेंगे कि वेदर इट इज ओके और नॉट फॉर सम वर्क मे बी एट द टॉप और व्हाटएवर, तो इन दैट केस टेल समबडी दैट यू शुड स्टैंड हियर एंड पुट द लेग लाइक दिस, उसको अटका के ऐसे कर, ऐसे कर, समझो ना, उसको अटका के रखने के लिए, फिर ऊपर चढ़ो, फिर उसको बोलो कि एक काम करो, धीरे धीरे अपना जो पैर रखा ना यहाँ पे, उसको थोड़ा थोड़ा करके रिलीज करो। तो जब जब थोड़ा थोड़ा करके एकदम से रिलीज करेंगे और मान लो स्लिपिंग कंडीशन हो तो फिर धड़ से गिर जाएंगे, ये बंदा भी नहीं रोक पाएगा। एक बार स्लिपिंग स्टार्ट होता है तो इसके लिए बड़ा मुश्किल। फिर उसको बोलो कि भाई तुम अपने पैर जो रखा है ना, उसको धीरे 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 रिलीज करो। रिलीज करने के बाद हट जाओ मान लो, और अगर लैडर नहीं गिर रहा है तब जाके मानो सेफ है। ये मत सोच लो कि जस्ट बिकॉज कि तुम यहाँ पे लैडर के ऊपर खड़े हो गए और सेफ हो गए, यानी अगर मान लो लैडर स्लिप नहीं कर रहा है अब तुम फटाफट ऊपर चले जाओ, तो हो सकता है जब तुम ऊपर चले जाओगे तब स्लिप कर जाए। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट अभी देखा था ना 3 टाइम्स है। अब वो 3 टाइम्स अवेलेबल है या नहीं तुमको कैसे पता चले, है या नहीं। तो देयर इज अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आल्सो। So therefore next time you climb a ladder, okay, next time you climb a ladder, be careful, don't test here, test here. यहाँ पे टेस्ट करो पहले, यहाँ पे टेस्ट करके सेटिस्फाई मत हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे जाते जाते हो सकता है कि लैडर स्लिप कर जाए, ये फ्रिक्शन हो सकता है अवेलेबल ना हो जमीन पे। तो these are the practical aspects, ठीक है ना, मतलब all things are not just on paper, I mean, but there is a practicality also, जैसे हमने अभी यहाँ पे, ठीक है ना। चलो, so I hope you got the point that I'm trying to convey. वैसे लैडर के ऊपर और लैडर का अगर तुम फिजिक्स थोड़ा सा एनालाइज करना चाहते हो तो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, मैं भी कोशिश करूंगा अगर मुझे टाइम मिल जाता है ढूंढने का, देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चार्ली चैपलिन मूवी है। उसमें उन्होंने क्या किया है, उन्होंने दिखाया कि एक बिल्डिंग है और यहाँ पे एक रोड है, मतलब वो फुटपाथ टाइप, और चार्ली चैपलिन ने क्या किया, यहाँ पे लैडर लगाया ऐसे कर, तो फुटपाथ के इस तरफ उसका स्टैंड है और ये वॉल है, मान जो भी वॉल है, ठीक है ना, ऐसे करके वॉल है, और वो यहाँ पे पेंट कर रहा है, तो खड़ा मतलब बैठ के
यहाँ पे कुछ एक कैन रखा है पेंट करने के लिए, और यहाँ पे वो पेंट कर, और फिर लैडर स्लिप कर रहा है, फिर इधर उधर हो जाता है। इट्स वेरी नाइस मूवी। तो चलो चार्ली चैपलिन का मूवी का तो इंटेंशन अलग था, टू मेक यू लाफ एंड ऑल, बट जब तुम उसको देखोगे तो तुम्हारे अंदर देखना फिजिक्स के थॉट जरूर आएंगे। अरे ये ऐसे स्लिप क्यों नहीं कर रहा है, अब ये ऐसे कैसे हो गया, अभी टॉर्क कैसे लग रहा है, देखना थॉट जरूर आएंगे। तो मे बी सम ऑफ यू कैन प्रोबब्ली सर्च दिस इन द इंटरनेट। एक चार्ली चैपलिन का थोड़ा सा है, कुछ 10-15 मिनट का मूवी है। अच्छा, इन द मीनवाइल लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं, कोई किसी को पेंट गिर रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द मूवी, आई मीन, बट दैट्स द डिस्ट्रैक्शनरी पार्ट। The main physics of it is how he climbs, and then sometimes the staircase becomes like this as a ladder. फिर वो किसी तरह से मैनेज करता है, उसको वापस टिकाता है। lot of things are there, maybe you can enjoy it if you want. So there's a Charlie Chaplin movie which you can see. While seeing the movie, try to connect it with physics if possible. Okay? So those were instances of torque working here. Okay. Now let's move on. We have studied about angular momentum. तो अगर मैं लीनियर मोशन में देखता हूं, लीनियर मोशन में, और अगर रोटेशनल मोशन में देखता हूं, इन दैट केस लीनियर मोशन में मास का जो रोल है, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वही रोल, ठीक है। लीनियर मोशन में मोमेंटम का जो रोल है, रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम का वही रोल है, ठीक है। और लीनियर मोशन में फोर्स का जो रोल है, उसके काउंटर पार्ट रोटेशन में है टॉर्क, ठीक है। So that's what we have learned till now. लीनियर मोशन में एक रिलेशनशिप है, वो क्या है कि अगर इन दोनों को कनेक्ट करो तो लीनियर मोशन में ये दोनों कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है ना, F is equal to dp dt, that too in vector form. Let's now today discover what is the connection between these two terms. ठीक है, let's see. तो मैं एक काम करता हूं, मैं लिखता हूं dl dt, ये dp dt है, यानी इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको भी डिफरेंशिएट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेट्स सी व्हाट इज द consequence. तो dl dt क्या होगा, d dt ऑफ l क्या है, r क्रॉस p है। तो अभी तो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कैसे करूं ना, वही प्रोडक्ट रूल। तो dr dt क्रॉस p, इसको डिफरेंशिएट किया, इसको एज इट इज रखा, प्लस r क्रॉस dp dt, ठीक है। व्हाट इज dp dt, फोर्स। तो फर्स्ट टर्म तो आई डोंट नो, बट सेकंड टर्म क्या हो गया, r क्रॉस f, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू टाउ वेक्टर। ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। अब मुझे बता दो इसका क्या होगा, व्हाट इज दिस टर्म, हाउ मच विल दिस टर्म, ये कितना होगा, जरा इसके बारे में बताओ, ये कितना होना चाहिए। सो मैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज अगर लैडर के बीच में टॉर्क निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। यू आर आस्किंग कि अगर लैडर के बीच में टॉर्क निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ना सेम तरीके से निकलेगा, कोई अलग कुछ नहीं है। इट इज जस्ट दैट अगर लैडर के सेंटर वाले पॉइंट को अगर तुम एक्सिस बनाते हो, इन दैट केस सिर्फ mg वाले का टॉर्क 0 होगा, बाकी सारे टर्म्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन ध्यान रखना, तुम एक्सिस या पॉइंट कोई भी ले लो इक्विलिब्रियम में, अल्टीमेटली घूम फिर के इक्वेशन वही बनेगा, लेकिन किसी में थोड़े ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स को इंक्लूड करके फिर समेशन करके वही बने इक्वेशन बनेगा, और कभी कभी कम नंबर ऑफ टर्म्स पे। तो हम तो कम नंबर ऑफ टर्म्स को फेवर करेंगे, क्यों, क्योंकि उसमें मुझे कम लिखना पड़ेगा, मुझे कम टाइम लगेगा। तो वो उसके लिए क्या तरीका होता है कि सर्च फॉर ए पॉइंट अबाउट विच द टॉर्क ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0, कोशिश यही करो, सो दैट फिर बचा कुचा जो फोर्सेस है उनके ही सिर्फ टॉर्क का इक्वेशन में टर्म्स आएंगे, तो उससे मेरा टाइम बचेगा, नथिंग एल्स। ऐसे नहीं कि इक्वेशन बदल जाए, इक्वेशन कैन नॉट चेंज ना। चलो, यशु एसेट की 0, ये वाला टर्म जो है ना 0 होगा। Now this term will be 0 is what has been suggested by Yashu. What about others? ये टर्म कितना आएगा,
जीरो आएगा क्या? ओके, एक ही जने ने आंसर किया, देहम has said कि it will become twice of kinetic energy. ओके देखो, देहम सुनो, एक चीज सुनो, ये ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो इसलिए भी नहीं हो सकता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, और ये तो वेक्टर, चल देखो क्या है, मुझे नहीं पता कितना आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 0 आएगा, माइनस आएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ भी हो जाए आएगा तो वेक्टर। अगर कुछ आउटपुट आता है, 0 नहीं आता है अगर, तो कुछ आउटपुट अगर आएगा तो वेक्टर में आएगा, तो वेक्टर का आउटपुट तो काइनेटिक एनर्जी नहीं आ सकता क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, तो देखो इट कैन नॉट बी काइनेटिक एनर्जी, है ना? ठीक है, अब कृष्ण ने भी 0 बता दिया, और श्रेयस says कि it will be momentum into velocity vector in direction of r vector. Yes Shreyashi, but then what is the result? अब तो अरियंत ने भी 0 बता दिया, बिल्कुल सही बात है, this term will be equal to 0. Now let's look at y. dr dt क्या होता है? Velocity. So therefore this term will actually become what? Now v cross p. अब देखो p क्या होता है? मोमेंटम, तो मास इंटू वेलोसिटी, उसमें जो मास वाला पार्ट है वो तो स्केलर क्वांटिटी है, उसको तुम इधर उधर कहीं भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो therefore this term will actually become v cross mv is equal to, m तो कहीं भी ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है, m into v cross v. any vector, कोई भी वेक्टर हो, if you have a or if you do a cross product of that vector with itself, वो हमेशा 0 आएगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, ए बी साइन थीटा, तो अगर ए इधर होता है बी इधर होता है तो ये जो होता है ये थीटा होता है, पर हमारे तो दोनों वेक्टर सेम सेम हो गए, वी है और वी है, तो जब वो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, यानी साइन 0 0 होता है, so therefore this term will always become equal to 0, यानी ये टर्म तो हो जाएगा खत्म, ठीक है, यानी बचा क्या, r क्रॉस m. so you have what, tau is equal to, ये tau हो गया, is equal to what, ना dl dt. ये देखो, ठीक है, dl dt, यानी जैसे ये दोनों रिलेटेड है, f is equal to dp dt, सिमिलरली आ गया tau is equal to dl dt. so therefore रोटेशन चैप्टर, कई बार हमें लगता है कि शायद ये तो बहुत कुछ अलग हो गया, बट फंडामेंटली अगर देखोगे तो चीजें काफी बराबर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, जैसे हम लोग कई बार दिमाग में सोचते हैं अरे ये तो बहुत ही अलग हो गया, बहुत ज्यादा अलग भी नहीं, बहुत ज्यादा अलग भी नहीं है, ठीक है, चलो, सो दैट वाज द कंक्लूजन, आई होप आई कैन रैप इट अप. अब एक काम करते हैं, ये जो डीएल डीटी है इसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया जाए, फाइन. फॉर रिजिड बॉडीज, अगर याद करके देखो, मैंने बताया था फॉर रिजिड बॉडीज विद डिस्ट्रीब्यूटेड मास, एल क्या होता है, आई ओमेगा, आई अबाउट a particular axis, but as I said that all these fundamental equations are valid only for center of mass, यानी मैं इसको लिखूंगा L center of mass is equal to I center of mass into ओमेगा, ठीक है. अच्छा, मैं इसका dl dt निकालता हूं, तो क्या आएगा, di by dt into ओमेगा. ये याद है ना, हमने पढ़ा था, ये हमने डिस्कस किया पहले, तो di dt into ओमेगा, ये भी प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, प्लस I into d ओमेगा dt, ठीक है. अच्छा, अब आ जाओ di dt. देखो, एक रिजिड बॉडी का और एक नॉन रिजिड बॉडी में फर्क क्या, जैसे मान लो मैं हूं ऐसे, और मान लो मेरे एक्सिस के थ्रू, मान लो कोई एक एक्सिस ले लो सेंटर मास वाला, ये सेंटर मास के लिए वैलिड है, मैंने पहले क्लियर कर दिया, ये जितने भी डायनेमिक के इक्वेशंस है ये सिर्फ सेंटर मास के अबाउट वैलिड है, यूनिवर्सली वैलिड है राधा. कुछ स्पेशल केसेस में कुछ और जगह का भी वैलिडिटी हम डिस्कस करेंगे बाद में, बट दैट्स नॉट यूनिवर्सल. सो देयरफॉर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ इज दैट यूनिवर्सली अगर देखना चाहते हो, इन दैट केस ये सारे लॉ सिर्फ सेंटर मास के लिए वैलिड है. इनफैक्ट न्यूटन्स लॉ भी सिर्फ एक ही पॉइंट के लिए वैलिड है, और वो है सेंटर ऑफ मास. आई होप यू रिमेंबर दैट डिस्कशन दैट वी हैड. चलो लेट्स कंटिन्यू. अब मान लो मैं तो कोई रिजिड बॉडी तो हूं नहीं, मैं तो फ्लेक्सिबल बॉडी हूं इन द सेंस कि वी कैन मूव डिफरेंट पार्ट्स में.
तो सिमिलरली ऑल ऑफ यू आर फ्लेक्सिबल बॉडीज। तो ऐसे केस में सपोज मैं यहाँ पे एक एक्सिस बनाता हूँ राइट थ्रू द सेंटर ऑफ मास, और मैंने मोमेंटम इनर्शिया निकाला, तो कुछ आया 10, 20, 30, 40 कुछ भी आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद मुझे किसी ने घुमा दिया, कुछ किया, टॉर्क लगाया, कुछ किया, और मान लो मैं ऐसे हो जाता हूँ या मैं ऐसे हो जाता हूँ, कैसे भी हो जाता हूँ, तो मेरा आई तो बदल गया। सिंपल चीज बता रहा हूँ, कोई कॉम्प्लिकेट तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये तो इसलिए बदला ना क्योंकि मैं रिजिड बॉडी हूं नहीं। मैं अपने हाथ को दूर कर सकता हूँ, कम नीचे ला सकता हूँ, ऊपर ले जा सकता हूँ, ऐसे आधा फैला सकता हूँ, फोल्ड कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। नॉट ओनली hands, I can do with the legs also, so like I can do many things. In short, the I value yani momentum inertia value is changing for my case, but that is because I am not a rigid body. अगर मान लो मुझे rigid body बना दिया जाए, मान लो ऐसे rigid body हो जाता है सपोज theoretically, तो in that case अगर I ऐसे होता है तो बाद में भी I ऐसे ही रहेगा, है नहीं? So therefore for a rigid body di dt will be what? Not equal to 0. But mind you, I'm only saying for a rigid body. क्यों? क्योंकि rigid body वो body होता है जिसमें shape change allowed नहीं है। जैसे मान लो this can be approximately talked about as a rigid body. क्यों? इसका shape नहीं बिगड़ रहा। I mean, shape तो बदलता है, देखो मैं ढक्कन निकाल लिया तो shape बदल गया, वो एक अलग बात है। But I'm just saying कि like unless you do some weird things, I mean, तो इसका जो है this can be considered approximately as a rigid body. ठीक है ना? तो ऐसे केस में क्या होता है, I तो कांस्टेंट होगा, तो डी वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। See why I'm going into so much of details is because 3 महीने बाद तुमको सडनली लगा अरे मोमेंटम इनर्शिया कोई फिक्स क्वांटिटी थोड़ी होता है, मोमेंटम इनर्शिया तो बदलता रहता है। बात सही है, लेकिन मोमेंटम इनर्शिया कब बदलेगा? एक पर्टिकुलर एक्सिस के लिए तो नहीं बदलेगा ना। तो कब बदलेगा? अगर बॉडी नॉन रिजिड हो। लेकिन हम लोग का सिलेबस में सिर्फ रिजिड बॉडी है, यानी जिसका शेप वगैरह बिगड़ता नहीं है, बदलता नहीं, तो ये टर्म 0 हो गया। बचा क्या? ये टर्म डी ओमेगा dt क्या होता है? अल्फा, यानी dl dt क्या होता है? अभी हमने देखा टॉर्क होता है, so therefore tau is equal to I into d omega dt क्या होता है? अल्फा। so we get another equation, और ये काउंटर पार्ट है किसका? ना देखो, अगर याद करके देखो, हमारे पास जो न्यूटन्स लॉ का होता है लीनियर मोशन में क्या होता है? F is equal to ma, जब मास कांस्टेंट होता है। सिमिलरली जब मोमेंटम इनर्शिया कांस्टेंट होगा, जो कि होता है रिजिड बॉडी के लिए, हमारे पास उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग फंडामेंटल इक्वेशन आ गया, एंड दैट इज टाउ इज इक्वल टू आई। तो देखो जरा, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या हाल है? एनालॉगस है, ठीक है, नजरिया अलग है ऑब्वियसली, दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग अ न्यू चैप्टर। अगर कुछ भी नया नहीं होता है तो हम पढ़ते ही नहीं है चैप्टर, कुछ तो नया भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फंडामेंटल लॉज आर एग्जैक्टली सिमिलर इन बोथ। देख रहे हो, ये इसके एनालॉग है, एनालॉग है, एनालॉग है, एनालॉग है, और अब एक नया भी एनालॉग आ गया, जो न्यूटन सेकंड लॉ था हमारा लीनियर मोशन के लिए, F is equal to ma, अब उसके काउंटर पार्ट आ गया टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। देखो m की जगह i, ये देखो m की जगह i, और एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, और फोर्स हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग टू टॉर्क। सो देयरफॉर वी कैन से दैट दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन, दिस इज द सेकंड लॉ और काउंटर पार्ट ऑफ रोटेशन या एनालॉग ऑफ linear motion। ठीक है, तो we have a very fundamental equation now, that is tau is equal to I alpha, which is the analog of F is equal to ma। ठीक है, okay, but today I will raise a very very fundamental point या fundamental discussion, and that is जब सब कुछ इतना एनालॉगस है, जब सब कुछ इतना सिमिलर है, हम नया चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, है ना? To understand that, let me ask a question. So just give me a second. ठीक है, अब मान लो कई बार घर में पूजा होता है, मंदिर में पूजा होता है, तो देखा होगा कि सब लोग आरती करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं? और एग्जाम के दिन अगर थोड़ा कम तैयारी है तो आरती का स्पीड बढ़ जाता है, उसका टाइम भी बढ़ जाता है या नहीं? So that's something that is inherent in many of us. Not me, I mean, I am an atheist. I mean, atheist means who does not believe in any of these religions and God and all. I am of that kind. But I have seen people doing them even in my house also.
some people do it, I mean, तो but many people do it. ये आरती करना होता है. वैसे मुझे नहीं पता आरती का डायरेक्शन क्या होता है. ये कुछ है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है. ये डायरेक्शन जो है मेरा सही है या गलत है? तो कमेंट आता है सही है. अच्छा, और ये डायरेक्शन में क्या होता है फिर? मतलब ये डायरेक्शन में मार्क्स बढ़ जाएगा और अगर उल्टा कर दिया तो मार्क्स घट जाएगा, ऐसे कुछ है या नहीं? था पहले वाला गलत था. पहले वाला गलत था. चलो जो भी है, यानी मेरा तो मार्क्स घट गया. चलो एनीवे, व्हाट आई एम आस्किंग इज दैट व्हाट इज दिस मोशन? ये जो हम आरती करते हैं ऐसे करके, ये किस तरीके का मोशन है? मैं सिर्फ दो ही ऑप्शन दूंगा. वन इज लीनियर मोशन एंड द अदर इज ऑब्वियसली रोटेशनल मोशन. नाउ यू माइट से ये तो सर्कुलर मोशन हुआ. सर्कुलर मोशन इज नॉट एनी अदर मोशन. मोशन दो ही है अभी तक, लीनियर और रोटेशनल. सर्कुलर भी लीनियर का ही पार्ट है, बट दैट्स लिटिल कंट्रोवर्शियल आंसर आई नो, तो मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा. मैं सिर्फ दो ही चॉइस दे रहा हूं. ये जो हमने आरती किया, ये लीनियर मोशन के अंदर आता है या रोटेशनल मोशन के अंदर आता है, ये तुमको बता. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1. बट अभी रुको, अभी एक और क्वेश्चन है, एंड दैट इज व्हाट इज अ रिजिड बॉडी? So you might say rigid body क्या है, तो आपने खुद ही बता दिया. अभी रुको, मैथमेटिकली मैंने रिजिड बॉडी बताया, और मैंने बताया इसके मतलब ये नहीं कि तुम लोगों को नहीं पता था, सबको पता था. रिजिड बॉडी मीन्स समथिंग हुज शेप डज नॉट चेंज. बट प्रॉब्लम पता है क्या ना, शेप करके कोई टर्म तुमको फिजिक्स की किताब में नहीं मिलेगा. कोई डेफिनेशन, कोई टर्म जो है ना डेफिनेशन में शेप वाला टर्म नहीं मिलेगा, तो हमें इसको मैथमेटिकली ही डिफाइन करना पड़ेगा. ठीक है, तो मैं इन दोनों को डिस्कस करना चाहता हूं. तो आई थिंक इजियर तो ये है, लीनियर और रोटेशनल, तो इसी से शुरू कर. ठीक है, हाँ जी, अब बताओ लीनियर या रोटेशनल? अच्छा, हर्षित सेज कि ये क्लॉकवाइज होना चाहिए ना, पता नहीं, somehow uncomfortable सा लग रहा है क्लॉकवाइज. मे बी दैट्स बिकॉज आई डिडंट नेवर डू इट, और ये somehow एंटी क्लॉकवाइज somehow थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है. बट एनीवे, मे बी आई एम रॉन्ग. चलो एनीवे, आंसर दिस. ये जो हमने आरती किया, चाहे क्लॉकवाइज करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज करो, कोई सा भी करो, चाहे सही वाला करो चाहे गलत वाला करो, ये लीनियर मोशन बोला जाएगा इसको या रोटेशनल मोशन? लेट्स सी द आंसर. आरती का थाली, ये लीनियर मोशन है या रोटेशनल मोशन? ये बता. So this is linear motion या rotational motion? Nobody is taking a risk. चलो, Mansha has given an answer. I'm not saying the answer, but she's the one who has given the first answer. I'm waiting for more answers. ये linear है या rotational है? I'm waiting for more answers. Only Mansha बस. Okay, ऋषभ ने भी अभी अटेम्प्ट किया एक, पार्थ ने भी किया है. आर्यंत नो एक्सप्लेनेशंस, ओनली आंसर. एक्सप्लेनेशन बाद में देखेंगे. अच्छा नहीं, पार्थ ने तो आंसर किया भी नहीं, शायद कुछ और. Garv has given an answer which has an explanation, so let me read that out. And that is, that would be linear, I suppose, because revolutions are being done. तो रिवोल्यूशन करना इज लीनियर मोशन, ये कोई कंपल्सरी है? जैसे मान लो सन के अराउंड अर्थ घूम रहा है, तो इसको लीनियर बोलोगे या रोटेशनल बोलोगे? दैट्स लिटिल कंट्रोवर्शियल. चलो एनीवे, स्नेह श्रेयसी has said linear, Path has said rotational, Mansha has said linear, Rishabh says linear, Yashu says linear, and so on. चलो ठीक है, ज्यादा लीनियर का आंसर आया, रोटेशनल का आंसर कम आया, बट एक दो जो डाउट्स आए इसमें से, उसमें मुझे लगता है somehow कि वो रोटेशनल का थॉट चल रहा है. Papa has also now said linear. Okay, now let's talk. अब जिसने भी जो आंसर दिया है, ज्यादा तो लोगों ने लीनियर दिया है, 2-3 ही रोटेशनल है, तो कोई बात नहीं, डजंट मैटर. इसका जस्टिफिकेशन बताओ कि जो लोग लीनियर बोल रहे हैं, क्यों लीनियर बोल रहे हो, ये लीनियर कैसे हो गया, जस्टिफाई करो. और जो लोग रोटेशनल बोल रहे हैं, वो भी जस्टिफाई करें कि ये रोटेशनल क्यों है. ठीक है, इनफैक्ट दैट विल आल्सो, सुन लो, दैट विल आल्सो answer a question, and that is, why are we studying this chapter? इस चैप्टर में नया क्या है? सब कुछ तो एनालॉगस है, तो कुछ नया भी है या कुछ अलग भी है,
या सब सेम ही है? So that's a question that also will be answered within this question itself. I'm just explaining, expecting some explanation. Garv is given, so that would be circular motion. ना circular motion allowed नहीं है. यही दो ऑप्शन है, लीनियर रोटेशन. सर्कुलर मोशन में क्यों नहीं अलाउ कर रहा हूं वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा. पहले तुम बताओ कि लीनियर रोटेशन में से कौन सा चूज करूं. ओके सर आपने बोला सर्कुलर है तो वो लीनियर का पार्ट हो गया. हाँ एक बार फिर से बताओ बेटे, मैं ध्यान नहीं दिया. सर आपने सर्कुलर का बोला था ना, लीनियर का पार्ट हो गया वो तो. हाँ वैसे सर्कुलर इज द पार्ट ऑफ लीनियर. तो सर लीनियर हो गया उससे. नहीं लीनियर हो, चलो ठीक है मैं समझ गया. नहीं बट एक्सप्लेनेशन क्या है, क्यों भाई? हमें तो रोटेशन लग रहा है, घूम रहा है ना, तो घूमना ही तो रोटेशन होता है. तो दैट कैन बी अ जस्टिफिकेशन. आई मे बी रॉन्ग बट आई एम जस्ट गिविंग अ जस्टिफिकेशन. ठीक है ना, तो प्लीज गिव अ जस्टिफिकेशन आल्सो. Shreyas is given linear because its center of mass is in circular motion. Okay, that's why I wanted to listen to the explanation. भी देखो, चलो let me give the answer finally. देखो आंसर तो लीनियर ही है, आंसर तो लीनियर ही है, लेकिन शेष ही तुमने जो जस्टिफिकेशन दिया वो जस्टिफिकेशन सही. ठीक है ना, चलो उसमें घबराओ मत कि अरे मेरा आंसर गलत हो गया, ऐसे नहीं. बट वी लर्न थ्रू द मिस्टेक्स. दैट्स व्हाई आई एम वांटिंग द आंसर्स. अदरवाइज मैंने आंसर दे दिया तो 2 लाइन का आंसर. चलो ठीक है, नेक्स्ट आंसर. यशु हैज आल्सो सेड एग्जैक्टली द सेम थिंग कि मैंने तो सेंटर ऑफ मास देखा है ना. देखो अगर सिर्फ सेंटर ऑफ मास देखोगे ना, इन दैट केस ये चैप्टर हमें सिलेबस से डिलीट करना पड़ेगा. अगर सिर्फ सेंटर ऑफ मास को देखोगे तो ये चैप्टर डिलीट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या? पार्टिकल. तो पार्टिकल का जो डायनेमिक्स है ना वो हम लोग सब कर चुके हैं. इस चैप्टर का एग्जिस्टेंस ही इसलिए है क्योंकि पार्टिकल के अलावा देयर आर सराउंडिंग पार्टिकल्स एंड इट्स अ रिजिड बॉडी. यही एग्जिस्टेंस का, इस चैप्टर के एग्जिस्टेंस का रीजन. चलो एनीवे लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड. अर्नव आई सेड कि सेंटर ऑफ मास इज मूविंग इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन. चलो ठीक है, बट देन एज आई सेड सेंटर ऑफ मास इज नॉट व्हाट द एक्चुअल दिस थिंग. Mancha said there is no movement of other particles with respect to the center of mass. Very interesting answer. अभी मैं कुछ भी commit नहीं कर रहा हूं, but I'm just waiting for 1 or 2 more answers, then I will shift. Center of mass के about angular momentum 0. Actually पता है क्या ना यशु, now what you are answering is not wrong, but the problem is that now angular momentum is little advanced concept. I want a little bit fundamental answer. मैं इसलिए आंसर तुम्हारा रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं, बट मैं इस वक्त एक्सेप्ट भी नहीं करना चाह रहा हूं, बिकॉज़ दैट्स अ लिटिल हायर लेवल आंसर. आई वांट अ वेरी बेसिक आंसर, बेसिक काइंड ऑफ एन आंसर. चलो ठीक है, आई थिंक नाउ 2 और पढ़ लेता हूं, उसके बाद आई विल गिव द आंसर. एंड दैट इज देम सेज क्योंकि ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्कल एंड नॉट अबाउट एन एक्सिस. Okay, ठीक है, I will discuss this point a little bit more details. Aditya Mathur says कि all particles of rigid body don't remain at a fixed distance from rotation of axis. No. This will be a wrong statement. ये wrong हो जाएगा. ठीक है ना, अभी बताऊंगा तो I think you will realize yourself. Mancha last explanation ले रहा हूं मैं, and that is therefore motion can be described in 1 dimension only, hence linear. चलो 1 dimension तो नहीं, 2 dimension होगा. ठीक है ना, but ठीक है. देखो पहली बात तो let me clarify. Linear motion is not straight line motion. कई बार हम लोगों को गलतफहमी रहता है कि लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन. नहीं है, लीनियर मतलब होता है लाइन. तो लाइन कैन बी स्ट्रेट लाइन, लाइन कैन बी कर्व्ड लाइन, लाइन कैन बी सर्कुलर, लाइन कैन बी कर्व्ड लाइक दिस आल्सो, एनी काइंड ऑफ लाइन. तो ये ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन कर रहा है ना, इसका मतलब क्या है, और रोटेशनल मोशन में क्या मतलब है ये मैं बता. देखो सुनो अच्छे से. लीनियर मोशन तब बताया जाएगा फॉर an object with multiple particles. Now you might see multiple particles का वर्ड आप क्यों यूज कर रहे हो? क्योंकि अगर एक ही पार्टिकल है ऑब्जेक्ट में, यानी जिसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसके सिर्फ एक ही मोशन हो सकता है, लीनियर मोशन, उसका कोई रोटेशनल मोशन नहीं है. ठीक है, तो मैं एक चीज में यहां पे कहना चाहूंगा इज दैट for a particle cannot have rotation.
it can be only linear. It can have only linear motion. अगर एक पार्टिकल है सिर्फ, in that case उसका कोई रोटेशनल मोशन पॉसिबल नहीं है. It can only have linear motion. Linear motion again I will repeat, does not mean straight line. अगर वो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो it's a linear motion. What kind of line? Circular line. हो सकता है कि पार्टिकल यूं आके ऐसे चला जाए, तो it's also a linear motion. What kind of line? ना line of a parabola, यानी parabolic line. क्या हो सकता है ऐसे हो रहा हो, तो it's a linear motion. What kind of line? Elliptical line या elliptical curve and so on. तो एक पार्टिकल का तो सिर्फ लीनियर मोशन पॉसिबल है, रोटेशन मोशन पॉसिबल है. रोटेशन मोशन कब होता है वो बताने के पहले मैं लीनियर मोशन फॉर मल्टीपल पार्टिकल्स डिस्कस कर देता हूं. आई थिंक दैट विल बाय डिफॉल्ट डिस्कस व्हाट इज रोटेशन. देखो लीनियर हो गया फॉर एन ऑब्जेक्ट विद मल्टीपल पार्टिकल्स इफ all particles at any instant have same v vector and a vector. यानी समझो मल्टीपल पार्टिकल्स को हम लोग लीनियर मोशन तब कैटेगराइज करेंगे जब सारे पार्टिकल्स का एक ही वेलोसिटी होगा और एक ही एक्सेलरेशन होगा उस इंस्टेंट. इसका मतलब मैं कांस्टेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है वो बदलेगा. जैसे चलो जैसे इसी को बताता हूं, ये लीनियर मोशन है. ये लीनियर मोशन में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर तुम कोई भी 5-6 पार्टिकल्स ले लो इसके ऊपर 1 2 3 4 5 और थोड़ी देर बाद एनालाइज करो, देखना पांचों पार्टिकल्स का वेलोसिटी सेम होगा. थोड़ी देर बाद एनालाइज करो, पांचों पार्टिकल्स का वेलोसिटी बढ़ गया होगा लेकिन सेम होगा आपस में, और एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे वही g होगा और थोड़ी देर बाद भी g होगा. फ्री फॉल की बात कर रहा हूं मैं. सो देयरफॉर एट एनी इंस्टेंट, मैं इंस्टेंट की बात कर रहा हूं, मैं थ्रू आउट द जर्नी की बात नहीं कर रहा हूं. एट एनी इंस्टेंट with multiple particles, if all particles have at any instant have the same velocity vector and acceleration vector, तो उसको हम linear motion बोलेंगे. ठीक है. आरती वाला एग्जांपल linear motion क्यों है, क्योंकि ये थाली अभी यहाँ पे है, ये थाली अभी यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद ये थाली यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद ये थाली एक्चुअली ऐसे जा रहा है, ऐसे कर, तो ये एक्चुअली ऐसे गया, ये भी ऐसे ही गया, ऐसे. थोड़ी देर बाद ये थाली यहाँ पे आ गया, थोड़ी देर बाद ये थाली यहाँ पे आ गया. तो जरा इसका मोशन देखो एक एक पार्टिकल का. ये पार्टिकल अगर देखोगे तो इतना डिस्प्लेसमेंट किया है, ये भी इतना ही डिस्प्लेसमेंट किया है, ये भी इतना ही डिस्प्लेसमेंट किया है, ये भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट किया है, ये भी इतना डिस्प्लेसमेंट किया है, ये भी उतना डिस्प्लेसमेंट किया है, ये भी उतना डिस्प्लेसमेंट किया है, ये भी इतना डिस्प्लेसमेंट. therefore अगर कोई सा भी 2 पॉइंट ले लोगे, 5 पॉइंट ले लोगे, 10 पॉइंट ले लोगे, किसी भी इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी स्टडी करोगे हर पार्टिकल का सेम आएगा. देखो डिस्प्लेसमेंट सेम, डिस्प्लेसमेंट सेम, डिस्प्लेसमेंट सेम, डिस्प्लेसमेंट सेम. तो therefore this is a linear motion. ठीक है. तो फिर रोटेशन मोशन क्या होगा, तो क्या रोटेशन मोशन फिर डिफाइन किया जाए, तो मैं अब रोटेशन मोशन डिफाइन कर रहा हूं. रिजिड बॉडी आज हो नहीं पाएगा, मैं समझ गया, कोई बात नहीं, कल करेंगे डिस्कशन. रोटेशन मोशन को मैं डिस्कस कर रहा हूं, देखो कैसे. फॉर मल्टीपल पार्टिकल्स, पहली बात तो मैंने पहले क्लियर कर दिया, सिंगल पार्टिकल वाले बॉडी पे रोटेशनल मोशन पॉसिबल नहीं है. अगर सोच रहे हो कि क्यों नहीं पॉसिबल है, वो भी इसी से पता चल जाएगा. फॉर मल्टीपल पार्टिकल्स वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर ऑल पार्टिकल्स आर डिफरेंट. तो हम इसको रोटेशनल मोशन बोलेंगे. ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स. अगर पहली बात तो रोटेशन सिंगल पार्टिकल के लिए तो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ मल्टीपल पार्टिकल्स के लिए पॉसिबल है. तो रोटेशन मोशन कब होगा, जब वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ऑल पार्टिकल्स आर डिफरेंट. ये मैंने लिखा है ऐसा स्टेटमेंट, तुमको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. ओके, ध्रुव शर्मा ने तुरंत बता दिया फॉल्स है. तो अगर मैं स्टडी करता हूं, देखो ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल, देखो ये पार्टिकल इधर जा रहा है, ये पार्टिकल इधर जा रहा है, यानी वेलोसिटी अलग हुआ ना, और एक्सेलरेशन इसका सेंट्रीपिटल इधर, इसका सेंट्रीपिटल इधर, तो एक्सेलरेशन भी अलग हुआ. तो यानी क्या होगा, ये जो मल्टीपल पार्टिकल वाला बॉडी है ये रोटेशनल मोशन कर रहा है. ठीक है.
Okay, Som has said false, Shreyasi says false, Aryan says true, Om says false. ये सब लोग false क्यों बोल रहे हो? ध्रुव गुप्ता ने भी false बता दिया, देव तेवाते ने false बता दिया, क्रिश false, रूपल false, पार्थ बंसल false. False क्यों बता रहे हो सब लोग? देहम says true. नहीं false सुन लिया मैंने, सबका false ही आ रहा है, ज्यादातर false आ रहा है. अभी तक 3 true आया है, बाकी I think almost 15 responses आ गए, सब false है. False क्यों बता रहे हो? इसमें क्या गलती है? ये देखो, अगर मैं इस मार्कर को घुमा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो, या मार्कर छोड़ो, मैं अगर इस ऐसे इसको सर्कुलर डिस्क समझ लो, अभी सर्कुलर तो नहीं है, अब अगर मैं ऐसे करके इसको घुमा रहा हूं, तो दिस इज रोटेशनल मोशन और नॉट? यस इट इज. क्यों? क्योंकि इसका वेलोसिटी अलग है, इसका वेलोसिटी अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, और हर पॉइंट का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अलग है. तो इन दैट केस गलत क्या बोला मैं? इन दैट केस गलत क्या मैंने बोला? अच्छा, अब सब ट्रू करने लगा. अरे क्या मतलब है? अब सब ट्रू होने लगा. हम गर्व क्रेश अब सब ट्रू हो गए. अरे रुको, मैंने एक काउंटर पॉइंट बोला. आई हैव नॉट फाइनलाइज्ड द आंसर एज येट. मैं एक काउंटर पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर आंसर्स फॉल्स आए, 2-3 ट्रू थे, और करीब 12-14 आंसर्स जो है मैंने देखा अभी, वो सारे फॉल्स थे. तो मैं एक काउंटर पॉइंट कर रहा हूँ कि फॉल्स क्यों बोल रहे हो. अगर मैं इसको स्टडी करता हूँ, जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, इस पॉइंट कोई भी 2 पॉइंट देख लो, सबके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन देखो अलग अलग. तो in that sense that I'm true. What is wrong in this? Okay, now Mancha said, Shreyasi said false इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि not necessarily all particles. Interesting answer. I will come to you. Mancha says that but if you take a vertical axis मतलब I don't know how you are wanting it to be. ऐसे एक्सिस बोल रहे हो, ये ऐसे एक्सिस, या कुछ और बोलना चाह रहे हो मंशा? So anyway, now I think because time is getting over, I mean, so let me give the answer, and that is yes, you are right. पहली बात तो मेरा स्टेटमेंट फॉल्स है. क्यों? क्योंकि मैंने थोड़ा ओवर क्लेम कर दिया कि सारे पार्टिकल्स के अलग होना चाहिए. ये गलत है. पता इसका सही आंसर क्या होगा? फॉर मल्टीपल वेव एक्सेलरेशन फॉर एटलीस्ट 2 particles. For at least 2 particles are different. अब ये ट्रू हो जाएगा. Now you might say, चलो कम से कम 2 पार्टिकल का अलग हो, चलो ठीक है. तो इसका मतलब सेम भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, और फिर भी रोटेशन में गिना जा सकता है. कैसे? ना मंशा ने जो एग्जांपल दिया, टेक ए वर्टिकल एक्सिस. आई डोंट नो वेदर यू मेंट बाय व्हाट आई वाज शोइंग और नॉट, बट दैट वाज द करेक्ट एग्जांपल. दैट इज, अब देखो मैं जरा, ये भी रोटेशन है. इसमें तो हर पार्टिकल का अलग अलग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन. चलो ठीक है, वो तो मैं मान. अगर ये प्लेन है, शीट है मान लो, यार इसमें तो मोटापा भी है, वो एक अलग कहानी है, बट लेट्स से अगर शीट ले लो, तो अगर शीट लेते हो और अगर ऐसे घुमाओगे, इन दैट केस एवरी पॉइंट विल हैव डिफरेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. लेकिन जरा ध्यान से देखो, अगर ऐसे एक्सिस लोगे, इन दैट केस मेनी पॉइंट्स विल हैव डिफरेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, बट मेनी पॉइंट्स विल हैव सेम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आल्सो. मतलब जैसे ये एक्सिस लिया ना, अब जरा एक काम करो, इस पॉइंट को स्टडी करो और इस पॉइंट को स्टडी करो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, और जरा ध्यान से बताओ क्या इसका वेलोसिटी अलग होगा, सेम होगा? देखो एक्सिस से ये भी l/2 डिस्टेंस दूर है, और एक्सिस से ये भी देखो l/2 डिस्टेंस दूर है. तो देयरफॉर इसका स्पीड क्या होगा? l/2 into ओमेगा, और इसका स्पीड क्या होगा? ये भी l/2 into ओमेगा. इसका डायरेक्शन इधर हुआ और इसका भी डायरेक्शन इधर, यानी ये जो 2 पॉइंट्स है इस केस में, ये क्या होगा? दोनों के वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम है. देयरफॉर कईयों के सेम भी आ सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, बट कम से कम कुछ के तो अलग हो. जैसे इस केस में जरा ध्यान से देखो, तुम एक काम करो, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स ले लो, यहाँ पे इसी पे, तो देखना सबके डायरेक्शन सेम आएगा. देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, समझ रहे हो? सबके देखो डायरेक्शन सेम आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग. क्यों? इसका आर अलग, 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 तो सबके आर अलग है. यानी अगर तुम इस लाइन पे पॉइंट्स को स्टडी करोगे तो सबका वेलोसिटी सेम होगा, लेकिन एक्सेलरेशन अलग होगा. सॉरी, सबका डायरेक्शन सेम होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग होगा. ठीक है ना? लेट मी रिपीट, क्योंकि मैंने पहले बार गलत बोल दिया था. एंड दैट इज, सबके डायरेक्शन यहाँ पे सेम होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा. ऑन द अदर हैंड, अगर तुम 2 इक्विडिस्टेंट पॉइंट लेते हो, सेंटर से या एक्सिस से 2 इक्विडिस्टेंट पॉइंट लेते हो, तो डायरेक्शन अलग होगा, एक का इधर होगा, एक का इधर होगा, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होगा.
और नहीं तो अगर रैंडम पॉइंट्स लोगे, जैसे मान लो एक कॉर्नर पे ले लो, एक मिडिल पॉइंट पे, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड दोनों भी अलग। सो देयरफॉर in rotation there should be at least 2 points in which the velocity and acceleration is different, तब जाके उसको हम रोटेशन में कैटेगराइज करेंगे। पर हाँ, कुछ के इक्वल भी हो सकता है, so that is also a possibility, ठीक है ना। चलो, anyway I think we will just wind it up with time. Therefore ये डिस्कशन बस 2 मिनट और करूंगा मे बी कल के क्लास में, और एक वो रिजिड बॉडी का डेफिनेशन रहेगा, एंड आफ्टर दैट वी विल सेट आवर दिस थिंग आईज ऑन दिस इक्वेशन, क्योंकि यही सबसे फंडामेंटल इक्वेशन है, जस्ट लाइक दिस बीइंग द मोस्ट फंडामेंटल इक्वेशन इन लीनियर मोशन, ठीक है। चलो, आई थिंक वी हैड अ गुड थ्योरेटिकल डिस्कशन टुडे। कभी कभी ये भी जरूरी है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे फोकस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी से कंसेप्ट भी बनता है, ठीक है ना। Whatever is a little bit missing right now, we will carry on and continue tomorrow and wind it up, and then as I said, we will move into this tau is equal to I alpha cases, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही, कल कंटिन्यू करें, ठीक है। ओके बेटे, थैंक यू सर। भव्य से इसकी चांसेस क्या है कि हाफ ईयरली स्कूल में होने का प्रोबेबिलिटी आई डोंट नो, मुझे तो 40-60 लग रहा है। 40 इज फॉर स्कूल में होना एंड 60 इज फॉर स्कूल में नहीं होना। बाकी डिपेंड्स ऑन द स्कूल मैनेजमेंट ऑफ कोर्स, एंड अनाउंसमेंट इज नॉट बीइंग मेड बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली, कि अभी स्कूल भी थोड़ा डायलेमा में है कि ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें, ठीक है सर। थैंक यू फॉर टुडे सर हाँ बेटे, बोलो बोलो, जल्दी बोलो। सर, अब एग्जाम जैसे पोस्टपोन हो रहे हैं तो सिलेबस भी बढ़ रहा है। आई एम नॉट श्योर, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर मेरे से सजेशन मांगेंगे, आई मीन इफ द मैनेजमेंट डिसाइड्स ऑन इट्स ओन, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, और अगर मेरे से सजेशन मांगेंगे तो इन दैट केस मैं तो बोलूंगा कि थोड़ा सा बढ़ा दो। रीजन बीइंग दैट आई मीन थोड़ा तो बढ़ना ही चाहिए या नहीं अगर मान लो मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे तक स्टार्ट होता है, तब तो सिलेबस लेट इट रिमेन द सेम, और अगर नहीं होता है तो इन दैट केस मे बी थोड़ा सा बढ़ सकता है। मतलब अगर मान लो नेक्स्ट वीक नहीं होता, उसके नेक्स्ट वीक होता है, तो दैट्स अ लॉन्ग पीरियड। So then maybe we will keep the syllabus as whatever we do till this week, ठीक है ना। That could be a possibility, but anyway till moment of inertia तो है ही है, तो like that is already known। उसके बाद का होगा नहीं होगा, let's wait for 1 or 2 more days, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही, thank you and have a good day।